Hello, guys, what is up? I'm Abhishek Chaudhary, your host, and welcome to the channel Code with Rapper. And in this tutorial series of JavaScript, in this lecture, we are going to cover the prerequisites of the JavaScript, those things you require before you begin with JavaScript. So, before starting with this module, JavaScript knowledge is not required. But you should be familiar with HTML and CSS. HTML is a hypertext markup language, आप में भी जानते होंगे, and it is the code that you use to structure your web content and give it a meaning and a purpose. CSS is also a coding language, and it is used to style your website. आपकी वेबसाइट को वो ब्यूटी प्रोवाइड करता है. And yeah, so what does JavaScript does? Okay, what does JavaScript do? JavaScript generally it gives interactive features to your website. If you won't use JavaScript, it means your website will be kind of static, and it won't be so much interactive. Let's try to go deep in it. I will open W3 Schools. Okay. एंड हम फिर यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाते हैं. जब हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो नीचे वी विल सी लॉट्स ऑफ टैब्स हेयर. कंसोल, सोर्सेस, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन एंड ऑल दीज. कोई दिक्कत नहीं है. हम यहाँ एलिमेंट में चलते हैं. सो व्हेन वी कम हेयर we see the two sections. Okay, left is the HTML code, and right side we see the CSS provided for this HTML. So two main things जो कि यहाँ पे यूज़ हो रही है इस वेबसाइट के लिए, वो है HTML और CSS. तो HTML इस वेबसाइट को एक स्केलेटन प्रोवाइड करती है. ओके, यदि हम यहाँ से इंस्पेक्ट करें तो फिर मुझे यहाँ की स्केलेटन पता चलेगी कि यहाँ पे AHREF वगैरह यूज़ हुआ है. एंड इसकी CSS प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ राइट साइड मिलेगी. सो या ऐसे HTML और CSS आपस में काम करते हैं, एंड ये स्टाइल प्रोवाइड करता है. इट गिव्स द ब्यूटी टू द HTML एंड योर वेब कंटेंट. दिस इज़ योर वेब पेज एंड दीज आर द कंटेंट ऑन द वेब पेज. हम उसे वेब कंटेंट कह सकते हैं. ओके, सो जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे अलग रोल होती है कि लाइक इफ़ यू वांट, सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक इवेंट ट्रिगर हो यहाँ से. ओके, अभी तो ये दूसरे पेज में रेफरेंस लेके जा रहा है, बट यदि मैं चाहूँ कि यहाँ क्लिक करूँ और एक इवेंट ट्रिगर हो, लाइक ये डिव मुझे दिखाई दे, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ हो सकता है कि हम इंटरेक्टिविटी ऑफ दिस वेबसाइट को ज़्यादा बढ़ाएं थोड़ा. ओके, सो या तीसरी चीज़, द थर्ड थिंग which is required before you move to the next lecture and start grabbing the concepts of JavaScript, you need to understand the client server interaction architecture. Okay, कि कैसे क्लाइंट और सर्वर आपस में इंटरेक्शन करते हैं. क्लाइंट सर्वर मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से. ओके, सो इस चीज़ को बताने के लिए मैं ये इमेज पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा. सपोज दिस इज़ द क्लाइंट एंड दिस इज़ सर्वर, and this is the network bridge between this client and the server. So through the network, some requests and responses are being
traveled from client, between the client and the server. Okay, so there are few points you need to understand. Okay, what are the clients? Clients are typically devices which makes request to the servers. Okay, and generally by using the browsers, it can request to the server using command prompt also, but generally we use the web browser to request any server. Yeah, so what are servers? Servers are the web pages and applications are stored on the servers. जितने भी वेब पेज आप ये देख रहे हैं ये किसी सर्वर पे स्टोर्ड होगा और वहाँ से हम कैप्चर करते हैं चीज़ों को. So when a request is generated from the client's browser to the server, a copy of the web page is downloaded from the server to the client's browser. So let's try to understand these things कि client जो कि आपका वेब ब्राउज़र है and the server जहाँ पे ये complete website stored है. Okay, तो ये interaction कैसे होती है? So when you type a web address on your browser like this, okay, the request goes to the DNS. The DNS resolves this address. Okay, it converts this address into an IP address. Okay, the IP address where the server is actually located. Okay, so इसके लिए DNS जो है वो काइंड ऑफ डिक्शनरी कह सकते हो या फिर उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मेंटेन करता है एंड ही नोज द DNS नोज कि कौन सा वेब एड्रेस किस IP एड्रेस को रेफ़र करेगा और किस IP एड्रेस पे वो सर्वर वो वेबसाइट होस्टेड होगा. ओके, so the browser sends a HTTP request asking it to send a copy of the website to the client. If the server approves the request, then it sends the file in the form of data packets or small chunks to the client, or you can say the browser. So जब request जाती है सर्वर को DNS के थ्रू, सपोज ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, थ्रू दिस नेटवर्क, ये आपकी वाईफाई भी हो सकती है, तो यहाँ से जाती है DNS. सपोज यहाँ पे है तो ये रिजॉल्व करेगा जिस वेब एड्रेस को आप क्लिक करना चाहते हैं एंड उसे IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा. उसे पता चलेगा कि यहाँ पे इस IP एड्रेस पे आपका मेन सर्वर लोकेटेड है या नियरेस्ट सर्वर लोकेटेड है जहाँ पे ये वेबसाइट होस्टेड है, ऐसा कह सकते हैं. तो फिर वो क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करेगा एंड यदि ऑथेंटिकेशन करना होगा देन इट विल ऑथेंटिकेट द यूज़र, और इफ़ इट इज़ पब्लिक देन इट विल जस्ट गिव द रिस्पॉन्स बैक with the required resources which was requested, okay, as a response. तो यही चीज़ है. हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि यदि मैं इसी वेब एड्रेस को कॉपी करूं, ओके, एंड मैं इंस्पेक्ट पे जाऊं और मैं नेटवर्क को जाता हूं, ओके, मैं इसे क्लीन करता हूं एंड आई विल ट्राई टू क्लिक ऑन दिस वेब एड्रेस. सो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड हो रही है इन द नेटवर्क ऑफ दिस इंस्पेक्ट. मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड हो रही है. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल्स. ओके, सो इट मे बी इमेज फाइल और द कोड्स रिटन टू बिल्ड दैट वेबसाइट. सो बहुत सारी चीज़ें हैं. JS स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सटेंसन. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्वर से हमें बैक टू द वेब ब्राउज़र चीज़ें वापस आती है. सो दिस इज़ हाउ क्लाइंट
and the server, interaction happens. Okay, so guys, these concepts are basics, and if you know, that is fine, and if you don't know, now you know. Okay guys, thanks for watching this tutorial, और हम और भी जाके डीप जाके चीज़ों को पढ़ेंगे. Yeah, thanks for watching. We will meet in the next tutorial. Okay, bye bye for now.